evening and good morning, everyone. Today is Dr. Bishop John's birthday, and we thought to come together and discuss about his personality and very especially about his contribution to the church in Pakistan. And he was a bishop who worked without boundaries, a bishop without boundaries. And we can also call him a great shepherd because the whole Pakistan was his diocese. Wherever he saw that his people, the Christian people, or the downtrodden are persecuted, he would make a point to reach there and stand with them. We also have a habit that when our forefathers are gone or they are deceased, we forget them very soon. But we thought that we should actually hold programs in honor of all those our great leaders like Bishop John Joseph, so that we can discuss their contribution and their work so that our present and future generations can learn from their great experience and the knowledge that they shared when they were living with us. So I would like to thank Father Anayat Bernard, who is a coordinator of Pakistani refugees in Thailand. And I would also like to thank Father Peter Rashid, who is a military chaplain of the Veteran Hospital in Boston. And I'm very thankful to both of them that they very graciously accepted my invitation to join with me and celebrate Bishop John's birthday virtually. So thank you, fathers, for joining me. Welcome. सबसे पहले I would like to thank और हम आज बिशप जॉन जोसेफ को हैप्पी बर्थडे इन हेवन कहते हैं कि खुदा ने हमेशा का आराम अता फरमाए. I wish to thank Harry Naim and his team who make an effort for this BLBPP to record, digitalize the history of Pakistan. पुराने वक्त में ये था कि हम किताबें लिखते थे, मज़ामीन लिखते थे, लेकिन आजकल ये दौर है कि आप डिजिटल इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं. So I congratulate you for this effort and hopefully you'll continue. Thank you so much for inviting me on the birthday of a great man who has left a legacy of sacrifice. I'm honored to speak a few words and partake in this discussion about his life and his work and the life that he has given for the people in Pakistan, not precisely for Christians, but all the minorities who are suffering many persecutions and hurdles in their lives and barriers that they are having, so that they could become total member of the mainstream. आज हम उस अजीम हस्ती की याद में इकट्ठे हुए हैं. फादर अनायत जो थाईलैंड में मकीम हैं और हैरी जो यहाँ अमेरिका ही में हैं, और हमेशा उन्होंने कोशिश की है कि मुख्तलिफ शख्सियात के बारे में बातचीत कर सकें. तो आज बड़े फ़ख्र की बात है कि उन्होंने हमें इनवाइट किया है कि हम बिशप जॉन जोसेफ की 88वीं सालगिरह के मौके पे बातचीत में हिस्सा ले सकें. थैंक यू हैरी. थैंक यू. You're welcome, फादर जी. फादर जी, मुझे ये बताएं कि बिशप जॉन की जो सालगिरह थी वो बड़ी धूमधाम से मनाई जाती थी फैसलाबाद में, और पूरे पाकिस्तान से उनके दोस्त और उनके चाहने वाले और उनके फैंस जो जितने भी थे वहां पर बहुत रश होता था. और मैं सोच रहा था कि ये जो बड़े लोग होते हैं इनके लिए सेलिब्रेशन सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं होती, बल्कि ये सेलिब्रेशन के जरिए भी लोगों को पैगाम देते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं. और बिशप जॉन की जो बर्थडे सेलिब्रेशन थी वो एक किस्म का एक मेला होता था, जिसके जरिए वो अपने तमाम लोगों को इकट्ठा करके उन्हें यकजहती का और मोहब्बत का और भाईचारे का इस तरह का पैगाम देते. उसमें बहुत गहराई थी. वो सिर्फ it was just not a celebration, mere celebration. It has a deeper meaning in it.
क्या ख्याल? correct. अच्छा, हम दोनों, फादर पीटर और मैं, हम दोनों सेंट मेरी सेमिनरी लाहौर में, हमें याद है कि वहां पर फादर मॉरन हुआ करते थे, उनकी 10 नवंबर को सालगिरह होती थी। और जब हम दोनों कराची सेमिनरी में पहुंचे, कराची सेमिनरी में, वहां पर 15 नवंबर वाज अ ग्रेट डे फॉर अस, क्योंकि उस वक्त के फादर जॉन जोसेफ हमें बहुत ट्रीट दिया करते थे और ही वुड एंजॉय आवर प्रेजेंस। और चूंकि फादर सिंध से हैं और इनसे भी हम सबसे बहुत प्यार करते थे, और ये बिशप जॉन जोसेफ का, उस वक्त के फादर का ये प्यार था, एहसास था कि जो हमारे साथ शेयर करते थे। तो वी वुड ऑलवेज रिमेंबर टू पीपल, फादर मॉरन ऑन 10th नवंबर एंड फादर जॉन जोसेफ लेटर बिशप ऑन 15th नवंबर। अच्छा अच्छा, तो ये उनकी जो सेलिब्रेशन थी, ये इसमें बड़ा डीपर मीनिंग था। क्या ख्याल है फादर? अगर आप मुझसे मुखातिब हैं तो मैं ये अर्ज करूंगा कि एक बार मुझे ये मौका मिला कि मैं, उन्होंने खास तौर पर मुझे इनवाइट किया कराची से, जब मैं सेमिनरी में था, प्रायरी में था, तो खुसूसी तौर पर मुझे बुलाया कि मैं उनकी सालगिरह पर पैगाम दूं। तो मैं ये मौका जो है कभी भूल नहीं सकता। I will never forget it because it has left great influence in my own personal life. कि वहाँ पे इतने लोग जमा थे, ना सिर्फ कैथोलिक्स बट गैर मुस्लिम लोग भी वहाँ पे जमा थे, उनकी खुशी में शरीक थे। और आई फील ऑनर्ड दैट कि मुझे उन्होंने बुलाया खास तौर पे इसी मौका के लिए और कहा कि भाई आप तकरीर कीजिए, और जहां मैंने उनकी शख्सियत के बारे में मुख्तलिफ बातें की, और मुझे ये एजाज कभी भूल नहीं सकता। अच्छा, उनकी सालगिरह की आपने हैरी बात की। लाहौर से फादर फ्रांसिस नदीम, लेट फादर फ्रांसिस नदीम और मैं, हम जब जाया करते थे, तो जब हम वहां पहुंचे, आमतौर पर लेट ही पहुंचा करते थे फादर को पता है, वो ट्रैफिक या जो भी है, तो वो स्टेज पर बैठे होते थे। बिशप जॉन तो उठकर सामने आते और हमें हाथ से पकड़ कर ले जाते और अपने नजदीक तरीन कुर्सियों पर बैठाया करते थे। दैट वाज हिज लव फॉर हिज प्रीस्ट। आई थिंक दैट वाज ब्यूटीफुल। हमारे लिए बहुत ये मेमोरेबल बात है कि जब हम 2.5-3 घंटे का सफर करके जाते थे, then he would welcome us wholeheartedly. अच्छा अच्छा, बहुत बहुत वेलकमिंग थे, बहुत वेलकमिंग थे। उनका जो स्टाइल था वो बड़ा बड़ा अवामी था, इसलिए उन्हें अवामी बिशप भी कहा गया। हाँ, इसीलिए तो अवामी बिशप कहलाते हैं ना वो, पाकिस्तान भर में और दुनिया में भी। तो बिशप जॉन, जैसे हम पहले बात कर रहे थे प्रोग्राम्स, बिशप जॉन ने 2 कमीशंस की बुनियाद रखी। एक नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस और दूसरा नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस डायलॉग्स। और वो उनके इन दोनों कमीशंस के पहले चेयरमैन थे। और फादर जेम्स चन्नन जो है वो क्रिश्चियन मुस्लिम डायलॉग कमीशन के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी थे बिशप जॉन के। तो फादर जी, आपने, फादर अनायत, खास तौर पर आपने उन्हें लाहौर में और आपने उनके साथ काम भी किया है, तो आपकी क्या यादें हैं क्रिश्चियन मुस्लिम डायलॉग कमीशन के मुतालिक बिशप जॉन के साथ? अच्छा, बिशप जॉन जोसेफ के लिए ये कोई जुग्राफियाई सरहदों का कोई तस्वर नहीं था। वो पूरे पाकिस्तान के लिए बिशप थे। अगर मैं समझता हूँ शेखुपुरा में कदलती के मुकाम पर एक वाकया हुआ कि वहां पर मसीहियों के घरों को ढा दिया गया, मुस्मार किया गया, और दिसंबर की रात को फैसलाबाद से वो वहां पर पहुंचे, और मैं फादर नदीम भी, हम वहां पर गए थे, और ये सर्दी भी थी और सर्द हवा भी चल रही थी, लेकिन इसके बावजूद वहां पर बिशप जॉन जोसेफ ने आकर उनको यकीन दहानी कराई कि हम इंसाफ के लिए स्ट्रगल करेंगे, आपको इंसाफ मिलेगा। और उसके बाद लोगों को तसल्ली देने के बाद वो वापस फैसलाबाद चले गए, लेकिन इस पे काम होता रहा। तो मैं समझता हूँ कि ये क्रिश्चियन मुस्लिम डायलॉग के हवाले से उन्होंने चाहा कि जितने भी अमन इंसाफ के इश्यूज हैं, अगर एक दूसरे का एहतराम किया जाए, तमाम मज़ाहिब का एहतराम किया जाए, सकाफतों का एहतराम किया जाए, दूसरे अकीदों का अगर एहतराम किया जाए, when there is a mutual respect, then only we can make a progress. मैं उनके मुख्य प्रोग्रामों में शामिल होता था और हम दोनों आमतौर पे इकट्ठे होते थे
जब फादर पीटर रशीद ये लाहौर में थे, हम तीनों इकट्ठे जाते थे, लेकिन आमतौर पे फादर फ्रांसिस नदीम और मैं इन प्रोग्रामों में शामिल हुआ करते थे. और he was down to earth and he was not just pretending, but he himself was very convinced for the rights of our people. And I think that's great. And then later on we'll talk about how for these rights then he sacrificed his life later on. तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो उन्होंने जो प्रैक्टिस की वो थी उनकी स्पिरिचुअलिटी ऑफ जस्टिस और स्पिरिचुअलिटी ऑफ डायलॉग, उस पर बड़ा बहुत सारे डीपर जो उन्होंने सब्जेक्ट्स जिनको हाथ लगाया, उन सब्जेक्ट्स को पहले तो छेड़ा नहीं गया था, तो उन्होंने बहुत नई नई जो सिमतें चर्च को दी. और इसलिए मैं चाहता था कि हम उन्हें याद करें ताकि जो हमारे खास तौर पर जो हमारे नौजवान अभी सेमिनेरियंस हैं और यंग प्रीस्ट हैं, यंग सिस्टर्स हैं, यंग कैटेकिस्ट हैं, ब्रदर्स हैं और हमारे जो नौजवान हैं, वो इन बातों को सुने और उन्होंने यही आगे काम करने हैं. क्या ख्याल है फादर रशीद? मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के नौजवानों के लिए उन्होंने अनमोल एग्जाम्पल्स जो हैं वो छोड़ी हैं. और जब हम उनकी खिदमत पर गौर करते हैं तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के नौजवानों के लिए वो मशले राह हैं और एक रहनुमा ऐसे हैं जिन्होंने अपने लहू से ये चिराग रोशन किए कि हम उनके नक्शे कदम पर चलते हुए एक दूसरे के साथ ताल्लुक रखें. जैसे पाकिस्तान के मुसलमान और क्रिश्चियंस और हिंदू, सिख्स और दीगर जो मिनॉरिटीज वहाँ पे मौजूद है पाकिस्तान में, उनके लिए मिलजुल कर काम करें. मेरे ख्याल में बिशप साहब ने यही सिलसिला शुरू किया था. और एक वाक़या मुझे याद आ रहा है, वो मैंने पढ़ा था किताब में कि बिशप जॉन जोसेफ के ऑनर में दारुल उलूम जामिया रहमानिया मदरसा जो फैसलाबाद में वाक़या है, वहाँ उनके लिए एक हॉल मखसूस किया गया है उनके नाम पे. और इसका इफ्तिताह बिशप जॉन जोसेफ ने किया था और ये इफ्तिताह हुआ मार्च 31, 2007. तो ये एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे नौजवानों के लिए एक रहनुमाई का बाइस बन सकती हैं. बिशप जोसेफ पुट्स ने किया होगा 2007 में. जी, उन्होंने ही किया. हाँ, बिशप जोसेफ पुट्स ने. अच्छा, ये ह्यूमन राइट्स के हवाले से अब हरी बात की. मैं 1985 में जब मरियमाबाद में था, उससे पहले भी आई वॉज वेरी टिमर्ड प्रीस्ट. तो ये 200-300 लोग बैठे हैं तो आई वुड बी शिवरिंग और नॉट नो कॉन्फिडेंस. तो ये कॉन्फिडेंस जो है मुझे एल सल्वाडोर के आर्च बिशप ऑस्कार रोमेरो और पाकिस्तानी पहले बिशप जॉन जोसेफ की जरूरत की वजह से मुझे ये हौसला मिला. और अभी 10, 12, 20, 50,000 लोग बैठे हों, then I will feel confident and I will enjoy to talk. तो ये मैं समझता हूँ कि इनकी is a contribution when a timid person becomes a very lively and we also fight for our rights. और यहाँ पर ये मैंने सीखा बिशप जॉन जोसेफ से कि जब मैं कसूर में था सन 2000 से सन 2005 तक, तो जितने भी सोशल इश्यूज थे, इनजस्टिस के इशू थे कसूर में, हर रोज एक दो वाक़यात मसीहियों के खिलाफ होते थे. दिस करेज आई गॉट फ्रॉम बिशप जॉन जोसेफ. तो ये मैं समझता हूँ कि उनका असर है, उनकी ये स्ट्रगल का असर है कि कंटिन्यू टू डू द वर्क. ये देखें, बाज ये कहते हैं मस्त भी काम नहीं है. जब लोगों का आप उनके साथ काम करते हैं, उनकी राइट्स की बात करते हैं, दैट इज व्हाट द गॉस्पेल इज, टू पुट द गॉस्पेल इनटू प्रैक्टिस. मैं समझता हूँ कि इनकी बड़ी बिशप जॉन बड़ी कंट्रीब्यूशन है व्हिच वी विल नेवर एवर फॉरगेट. ये वो उनकी शख्सियत इन्फ्लुएंस दूसरों को करते थे.
और दूसरा उनकी जो शख्सियत है मकनातीसी, जैसे मैग्नेटिक होते हैं ना, मैग्नेटिक पर्सनालिटी थी, दूसरों को खींचते थे अपनी तरफ, और जो उनके असर में आते थे उनको इन्फ्लुएंस करते थे अपनी शख्सियत से। उनकी जो शख्सियत में बहुत कशिश थी और इन्फ्लुएंसिंग पावर भी थी उनमें बहुत ज्यादा। जब वो किसी को मिलते थे, मैं उन्हें अप्रैल के 1998 बिशप्स हाउस मुल्तान में बिशप्स कॉन्फ्रेंस थी, और बिशप जॉन से मेरी मुलाकात उस वक्त हुई जब वो बिशप्स हाउस मुल्तान में थे, और मैं हाउस इंचार्ज था। तो बिशप साहब को कोई ऐसी चीज की जरूरत पड़ी और उन्होंने मुझे बुलाया, तो मुझे मिले, कहते यार तू कभी मुझे मिला नहीं, तो जब फैसलाबाद आओ तो फिर मुझे जरूर मिलना। तो उन्होंने ऐसा इंप्रेशन छोड़ा, तो मेरा प्रोग्राम था कि जब भी मैं फैसलाबाद जाऊंगा तो मैं बिशप साहब को सलाम करने जाऊंगा। उनकी शख्सियत में ये बहुत ज्यादा है, जो पावर थी इन्फ्लुएंस करने की, वो बहुत ज्यादा थी। अच्छा, ये मैग्नेटिक पावर के हवाले से मुझे याद है, ये मसीह कॉलम का मसला था। उस वक्त बिशप जॉन जोसेफ ने भूख हड़ताल की, और लाहौर से बिशप उस वक्त के एलेक्जेंडर जॉन मलिक और बिशप अरमांडो ट्रिनिडाड, ये दोनों गए ताकि बिशप को उठाएं कि अब ठीक है आप उठ जाएं। तो उन्होंने, बिशप जॉन ने कहा कि बिशप मलिक को क्या क्यों कराए, बिशप अरमांडो को पाजी कहते थे, एल्डर ब्रदर। तो बिशप जॉन ने बिशप मलिक को कहा कि आप इन्हें क्यों लेकर आए हैं। तो इवेंचुअली तो ये है कि ही वाज फॉर पीपल, और ये मैं समझता हूँ कि ये उस वक्त भी हालात हुए थे, अब भी हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। तो ये जैसे फादर रशीद ने नौजवानों की बात की, ये नौजवान प्रीस्टों के लिए भी है, नौजवान सोशल लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर, रिलीजियस लीडर्स के लिए, कि हम अपने मुकम्मल तौर पे यकसुई के साथ अपने लोगों के हकूक के लिए काम करते रहें। और ये मिसालें हमारे साथ सामने हैं, वी शुड फॉलो देम। वो नई नई चीजें बहुत शुरू करते थे, नई मिनिस्ट्रीज जिन्हें कहते हैं, नई खिदमत के जो मौके। थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया कि वो मिलनसारी का, वो बेहद मिलनसार थे, दिल नवाज थे, और मेहमान नवाजी बहुत ज्यादा वो करते थे। मुझे उनसे आखिरी मुलाकात का वाक़या याद आ रहा है। फादर अनायत, फादर नदीम और मैं तीनों तकरीबन 2 माह पहले उनकी वफात से, शहादत से, हम वहाँ पे गए, और बहुत अच्छी तरह उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया, और हम काफी देर बैठे उनके ऊपर रिसेप्शन रूम में, और क्या बात है, टेबल सारा भरा हुआ था और सब चीजों से, लवाजमात से, और हमने बहुत ही अच्छा वक्त गुजारा। और वो इस कोशिश में थे कि हम रुकें और डिनर के लिए जाएं उनके साथ मिलके, लेकिन हमें लाहौर जाना था और वहां से इस्लामाबाद का प्रोग्राम था हमारा। तो हम नीचे आए, और वो सफेद शलवार कमीज पहने हुए थे, और उन्होंने हमें अलविदा कहा, और ये वाकया मैं कभी उम्र भर नहीं भूल सकता। और वो ग्रेसफुल जो चेहरा था उनका, वो अब भी मेरी आंखों के सामने है। मैंने हैरी से एक बार जिक्र किया था, मैं उन्हीं दिनों में रिट्रीट प्रीच करने के लिए मेन गया, तो ये उनकी शहादत का वाकया पेश आया, तो मैं समंदर के किनारे था। आप यकीन माने, बिला मुबालगा मैं ये बात कह रहा हूँ कि समंदर में मुझे उनकी शबीह नजर आती थी, कि इतना वसी था समंदर, और मैं उनकी शक्ल जो थी मेरी आंखों के सामने आ रही थी समंदर की तरह। तो मैं ये वाकया हकीकत में भूल नहीं सकता, ये ऐसा हुआ मेरे साथ। यानी उनकी शख्सियत की छाप जो मेरी जिंदगी में है, वो इस तरह की है, समंदर की तरह वसी। और फादर नायद इस बात के गवाह हैं कि हम उनको मिलने के लिए गए थे तीनों, और ये मेरे लिए मेरी आखिरी मुलाकात थी उनके साथ। इसके बाद नहीं मिल पाए हमें। और फादर साहब, उनका स्टाइल होता था, ये मेहमान नवाजी, हॉस्पिटैलिटी, रियली इट वाज अ ग्रेट स्टाइल, और वी वुड एंजॉय कि वो प्रॉपर हर एक को रिस्पेक्ट देते थे। और मैं बात हैरी से बात किया करता हूँ कि व्हेन वी गिव रिस्पेक्ट टू द अदर्स, हम अपनी रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं।
यहाँ पर मुझे याद है बिल्कुल। बाज लोग उनसे पहले जब मैं पैरिश में गया तो कहते हैं फलां फादर ये थे वो थे, तो हम ये नहीं करें नहीं नहीं आप चुप करो, आप मुझे मेरे बारे बात करो, उनकी आप छोड़ो नहीं, यू शुड आल्सो जॉइन विद द पीपल। उनकी आप उन्होंने हर एक प्रीस्ट काम करता है उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो इसी तरह जब हम बिशप जॉन के पास जाते थे, he would हम जूनियर थे उनके शागिर्द थे क्राइस्ट किंग सेमिनरी में, and he would show us such a respect that is beautiful, that is great, we can never forget कि हम उनके जूनियर कर रहे हैं, उनके शागिर्द, और हमें इतनी रिस्पेक्ट देते थे। Just imagine. So I think we should also follow these values to talk about the good thing what others have done, not to say कि नहीं उनकी बात ना करें मेरी बात करें, नहीं, whatever whoever has done something we should always appreciate. मेरा ख्याल वो नौजवानों से उनका बहुत प्यार था। आप उस वक्त यंग प्रीस्ट थे, आप उनके शागिर्द भी थे, यंग थे, तो उन्हें नौजवान नस्ल से बहुत उम्मीदें थी, और इसलिए उनके जो जब भी पुरानी तस्वीरें देखें तो उनमें सारे वो नौजवान साथ उनके नजर आते हैं। बुजुर्ग भी थे लेकिन नौजवान बहुत सा यंग प्रीस्ट बहुत उनके साथ होते थे। जो भी उनकी स्ट्रगल है वो यंग प्रीस्ट के साथ थी। और जो फैसलाबाद में जैसे जो नौजवान लड़के थे उस वक्त के, वो सारे बिशप साहब ने तैयार किए हुए थे, उनके साथ होते थे। ये यंग प्रीस्ट के हवाले से जब हमारा प्रोग्राम होता था ना, ये KRT ये लफ्ज नाम दिया था उस वक्त बिशप जोसेफ कूट्स ने, जो आजकल कार्डिनल हैं। KRT का मतलब काहनाना रफाकत 93। तो मैं लाहौर में था, मैं लाहौर डायसिस का नुमाइंदा था, तो ये KRT में गए 1993 में ही वाज देयर। तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम तमाम को, अगर एक डायसिस का फादर है उसको ही शुड हैव कंसर्न फॉर होल, इट्स नॉट ओनली दैट यू आर ओनली फॉर वन डायसिस। तो उस वक्त उन्होंने वाजे किया था कि ही इज नॉट ओनली फॉर फैसलाबाद, ही इज फॉर होल कंट्री। और जहां जहां नाइंसाफी होगी वो पहुंचते रहे हैं, और दैट वी हैव एक्सपीरियंस इन हिज लाइफ, और दैट वाज अ ग्रेट थिंग। और ये 1992 फादर पीटर को भी पता है कि 1992 के 10 अक्टूबर को मेरी काहनाना फादर बनने की सालगिरह थी। मैं और फादर फ्रांसिस नदीम हम खाना खा के आ रहे थे, तो 10 अक्टूबर 11 अक्टूबर की रात को सेंट मैरी सेमिनरी में मुझ पर अटैक हुआ, डैकॉइट्स ने अटैक किया, एंड आई वाज वुंडेड, और यहाँ पर 13 स्टिचेस लगे। और बिशप जॉन जोसेफ, आप ये देखें, नौजवान काहनों के साथ और नौजवानों के साथ प्यार की बात कर रहा हूँ, स्टोरी बता रहा हूँ कि वो फैसलाबाद से 2.5 घंटे का सफर तय करके लाहौर आए, मेरे पास 20 मिनट बैठे और फिर वापस चले गए। He came only for me, and Wow. how can you forget? He only came to see me and encourage and see, and that was his love for his young priests, not only for his diocese but the whole country. I agree with you. ये ऐसे ही करते थे वो इसे वो जैसे वो ट्रू शेपर्ड, That's right. जैसे अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है और अपनी भेड़ों को जानता है नाम बना। तो मैं सोचता हूँ कि बिशप जॉन ने ये जो प्रीस्ट जो शेयरिंग और प्रीस्ट ऑन लोन देने का जो सिलसिला शुरू किया था, ये भी एक बड़ी बिल्कुल नई अपॉस्टलेट थी, और जिसको उन्होंने बहुत प्रमोट किया और बहुत प्रीस्ट बनाए, और फिर उनको शेयर करते रहे पूरे पाकिस्तान के साथ, बल्कि बाहर के मुल्कों में भी फैसलाबाद डायसिस के बहुत प्रीस्ट उनके वक्त गए, अमेरिका में, इंग्लैंड में, जहां जहां भी जरूरत होती थी बिशप जॉन ने, उन्होंने अपने वक्त में बहुत सारी नई नई अपॉस्टलेट्स और नई नई मिनिस्ट्री शुरू की ताकि प्रीस्ट को इस्तेमाल किया जा सके उनके टैलेंट्स के मुताबिक, जैसे क्रिश्चियन मुस्लिम डायलॉग, जस्टिस एंड पीस कमीशन, फिर ये जो प्रीस्ट ऑन लोन देना, ये भी एक नई अपॉस्टलेट थी। हाँ, पहले ऐसा हुआ नहीं करता था, कि उन्हीं ने शुरू किया था ये। मेरे ख्याल में आगाज उन्हीं से हुआ था। अगर वो जिंदा होते तो मेरा ख्याल और बहुत सारे कमीशन और बहुत सारी नई नई मिनिस्ट्रीज और नई नई अपॉस्टलेट्स वो निकालते। जी, कोई बात नहीं, वो हमें वी शुड कंटिन्यू, जो हम उनके शागिर्द हैं या जो हमने उनके साथ सीखा, तमाम सिस्टर्स, फादर्स, कैटेकिस्ट, तो उन तमाम वैल्यूज को जो उन्होंने इंसानी हकूक के लिए की, आई थिंक देयर इज नो हेजिटेशन, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन दैट वी शुड कंटिन्यू, एंड वेयरएवर वी आर, व्हाटएवर वी डू, हमें अपने लोगों के लिए काम करते रहना चाहिए। देखिए, मैं जैसे आपने बात की कि बिशप का ये था
the shepherd gives his life for his sheep, and that's what he did. और ये कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि the shepherd knows his sheep by name, ठीक है जी. और पोप फ्रांसिस ये कहा करते हैं कि the shepherd should smell the sheep. और मैं ये कहता हूँ, फादर नाथ बर्नार्ड कहता हूँ कि शाम को जब पैरिश में जो फादर्स काम करते हैं, शाम को फादर का अकेले खाना खाना मैं जिम्मेदारी के साथ सगीरा गुनाह कह रहा हूँ, venial sin, क्योंकि people long to see the priest. मैं समझता हूँ कि there's no point, they should go to the people, they must visit. किसी कहते हैं फलां आ गया फलां आ गया, फिर आप अपनी जिम्मेदारी करेंगे. जब कोई बीमार है, जब कोई एक्सीडेंट है, जब कोई हर गमी खुशी में शामिल हों, तो there is no problem. So that is the role of the good shepherd. जो Bishop John Joseph, as a shepherd, he did it, and that's why he sacrificed his life for his people, for the true rights for them. एक और मुझे उनके जो पुरानी उनकी वीडियोस जो डॉक्यूमेंट्रीज देखे ना, तो वो बहुत सारे ज़बूर गाते हुए नजर आते हैं. जब वो प्रोटेस्ट होते थे या किसी जगह पर भी हैं, तो वो मेरी जानदा कला है, इस तरह के ज़बूर, वो खुदा पर बहुत गहरा ईमान था, बहुत. यीशु मसीह पर और खुदा पर, और खुदा की जो खुदा पर जो ईमान है और खुदा की प्रोविडेंस पर यकीन था पूरा. इसलिए नटाल की बात कर रहे हैं, ये फरवरी 1986 में 1986 में रहमिया खां का गिरजा जलाया गया. उस वक्त जो बिशप पतरस यूसुफ मुल्तान के बिशप थे, और मैंने उनसे बात की. सेंट मेरी सेमिनरी में रेक्टर नहीं था, फादर कोर्ट्स के साथ मैं वहां पर था. और 1986 में हमने मुख्य लोगों ने हमें इनवाइट किया. बिशप जॉन फैसलाबाद से लाहौर आए, और लाहौर कैथोलिक कैथीड्रल से गवर्नर हाउस पंजाब तक उस जुलूस में शामिल थे. और उसमें बाद में काफी तोड़फोड़ हुई, और एमपीओ का बाज लोगों पे और फारनदीन पे भी लगा, केसेस बने. लेकिन ये था कि जैसे आपने उनका मौक़िफ़, ये मोटो भी था कि वो मेरी जान दा किला है. और जब भी हम ये गीत गाते हैं, then we are strengthened. जब हम ज़बूर गाते हैं, then we are strengthened with this psalm, that how courageous he was, and he was not afraid of anything, but he would just show his love and concern for all the people. So it was a very memorable protest for the human rights. बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था. मैं उस वक्त सेमिनेरियन था और हम भी उस जुलूस में थे. वो कोई 12-1 बजे शुरू और शाम 6-7 बजे तक हम रोड्स पर थे. कायदाना सलाहियत तो उनमें थी बहुत, और हमेशा उन्होंने परवाह नहीं की, हर किस्म की रहनुमाई की. भूख हड़ताल तक की आज तक किसी बिशप ने पाकिस्तान में तो नहीं की होगी, लेकिन उन्होंने जरूर की. और इंसानी हकूक के लिए अपनी आवाज जो है आखिरी दम तक वो बुलंद करते रहे. और तारीख गवाह है कि ऐसी क़यादत तो बड़ी मुश्किल से मैसर आती है. ना सिर्फ मुल्की क़यादत, सियासी क़यादत, बल्कि मजहबी क़यादत भी जो बेलौस खिदमत पर यकीन रखती हो. बिशप साहब की क़यादत हमारे लिए बहुत बड़ी रहनुमाई है, और वो बिल्कुल जुर्रतमंद थे, और उन्होंने कभी अपनी जान की परवाह नहीं की थी. बड़ी मुदब्बराना क़यादत की उन्होंने हमारे इक्लेसिया की, हमारी कौम की, हमारे मुल्क की, ख़ास तौर पे हमारी अक़लियत. मैं अक़लियत नहीं कहता हूँ, हम पाकिस्तानी कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उन्होंने सारी कौम के लिए एक ऐसे निशान छोड़े हैं जो भूल नहीं सकते हम. जी. और कोई ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहें बिशप जॉन की सालगिरह पर? बिशप जॉन की सालगिरह पे जब हम ये पेरिस में हमारी मीटिंग थी यूसिप की, यूनियन ऑफ इंटरनेशनल कैथोलिक प्रेस, यूसीआईपी, वहां पर एक रिपोर्ट पढ़ी जा रही थी. उसमें उन्होंने लिखा कि बिशप जॉन जो फैसलाबाद कमिटेड सुसाइड. एक्सक्यूज मी, मैंने हाथ खड़ा किया, अगर प्लीज डोंट से इट्स अ सुसाइड, प्लीज राइट सैक्रिफिशियल डेथ.
that after his sacrificial death, and so continue, no? So I said wherever जब कोई, क्योंकि हम जो पाकिस्तान से हैं, हमें इन बातों को दूसरों पे वाज़े करना है, because they don't know, they are looking from far, but you are there. और ये शहादत के इस तरफ आ रहे हैं, और मैं उस सलीम अंजम थे, और लेट फादर सिद्दीक पतरस अपने नाम के साथ वो ज्यूरियां हमेशा लिखा करते थे, क्योंकि हाफिजाबाद से ताल्लुक था, और हर बार ये लिखते थे। और वहां पर हमें खबर मिली रात को, नेक्स्ट डे आई वेंट बैक टू लाहौर, फिर वहां पर बिशप साहब के खुशपुर में हम गए थे, चंद दिनों के बाद जनाजा हुआ था, और उस वक्त बहुत जबरदस्त बारिश थी, और इट वाज लाइक अ स्टॉर्म। वहां पर एयरपोर्ट से फिर खुशपुर नेक्स्ट डे गए, और मैं समझता हूँ कि दिस वाज अ सैक्रिफिशियल डेथ, और वी शुड नेवर कॉल इट अ सुसाइड। अगर ये सुसाइड होती तो ये बाथरूम में या कहीं भी हो सकती थी, लेकिन उसमें देखें कि 5 मई 1998 को वो लेटर उन्होंने जारी किया था, 5 मई को, कि ब्लास्फेमी लॉ इज अ बिग ऑब्स्टिकल बिटवीन द रिलेशनशिप्स बिटवीन क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी रुकावट है, और हमें इसको एक भरपूर धक्का देना है, ये उन्होंने कहा था। वी हैव टू गिव इट दिस इज अ ब्लॉक एंड वी हैव टू डू अवे विद इट, ग्रेट ऑब्स्टिकल। 5 मई 5 मई 1998, और नेक्स्ट डे 6 मई को ये he went to that court जहां पर अयूब मसीह पर ये डेथ सेंटेंस सर्व कर दिया गया था। तो वहां सेशन कोर्ट में साहिवाल में जाकर वहां अपने आप को वॉलंटरली रजा कराना तौर पे अपने आप को पेश करना, दिस वाज इन प्रोटेस्ट। सो आई थिंक दिस वाज अ ग्रेट थिंग, ये नॉट एनीवेयर एल्स बट दैट स्पॉट, एग्जैक्ट स्पॉट, ताकि ये वाजे हो किस मकसद के लिए वो अपनी जान दे रहे हैं। एंड दैट वाज वेरी क्रूशियल point, it was a sacrificial death, not suicide. ये जो विकिपीडिया और गूगल पे उधर भी लिखा हुआ है सुसाइड, तो मैंने गूगल को लिखा था कि ये इनकरेक्ट है, तो मैंने उधर लिखा उन्हें कि आप लिखें वहां पर सैक्रिफिशियल डेथ, सुसाइड नहीं है। तो भी ये मेरी जो रिक्वेस्ट है वो अंडर कंसिडरेशन है, तो दे विल गेट बैक टू मी, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसे चेंज कराया जाए, ताकि इसे सैक्रिफिशियल डेथ लिखा जाएगा, सुसाइड नहीं। ठीक है हरी, आप जो कर रहे हैं, क्योंकि हम जो है ना पाकिस्तान के, वी नो, वी हैव टू टेल देम, क्योंकि बहुत दूर से सुनते हैं ना, तो आई थिंक यू हैव डन अ गुड जॉब एंड दैट शुड गो इन द हिस्ट्री। अगर वो ज्यादा डिटेल मांगे फिर मैं आपसे राब्ता करूंगा, फिर हम ज्यादा लिख के दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा कदम उठाया आपने, बहुत अच्छा। तो बिशप जॉन की तो शख्सियत ऐसी थी कि हम उनके मुतालिक जितनी भी गुफ्तगू करें, उनके काम के मुतालिक, उनका काम मुंह बोलता सबूत है, और मैं आपका दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हमने बिशप जॉन को याद किया है, क्योंकि अमेरिका में मैं हॉस्पिस चैपलन हूँ, और यहाँ पर ये लीगल रिक्वायरमेंट है कि जब किसी की मौत होती है हॉस्पिस में, तो हम बतौर हॉस्पिस चैपलन वी आर बाउंड टू कीप कांटेक्ट विद द फैमिली फॉर 13 मंथ्स। 13 महीने में हम उनको क्रिसमस पर, ईस्टर पर, थैंक्सगिविंग पे, न्यू ईयर पे कार्ड्स भेजते हैं और कंडोलेंस कार्ड्स भेजते हैं, और फिर उन्हें उनकी डेथ एनिवर्सरीज पर कॉल करते हैं, और फिर भी जब भी कहीं मौका मिले कोई ना कोई कम्युनिकेशन उनसे होती है, ताकि उन्हें उनके खानदान को अकेला ना छोड़ा जाए। तो बिशप जॉन का खानदान सिर्फ उनका जो बायोलॉजिकल खानदान था वही नहीं था, बल्कि पूरा पाकिस्तानी चर्च जो है वो उनका खानदान था, और हम इस तरह का प्रोग्राम मुनक्कद करके हम उनके पूरे कलीसियाई खानदान और उनका जो बायोलॉजिकल खानदान था उनको तसल्ली का पैगाम देते हैं कि वो भूले नहीं हैं, वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। अच्छा, ये 6 मई को उनकी शहादत हुई, सैक्रिफिशियल डेथ 6 मई 6 मई 1998, और उसी चंद दिन बाद 15 मई को इट वाज अ ह्यूज प्रोटेस्ट इन फ्रंट ऑफ चेयरिंग क्रॉस, ये जो पंजाब असेंबली है, ये 1998 में, और देन इट टर्न टू बी ब्लडी एंड लॉट ऑफ पीपल दे वर वुंडेड, और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई और जख्मियों
को चेरिंग क्रॉस से लाकर कैथीड्रल में अंदर लाते थे। बिशप उस वक्त सैसल चौधरी थे और बिशप सैमी अजराया और मैं और फादर नदीम तो उस वक्त उनको बीपी लो हो गया और बेहोश होकर उनको दे गए थे हॉस्पिटल में और कुछ बंदे गिरफ्तार भी हुए। तो ये 15 मई को इट वाज अ ह्यूज प्रोटेस्ट कि ये जो वाकया हुआ ह्यूमन राइट्स के हवाले से उनको दिन मनाया गया। लेकिन ये उसी साल 1998 में 28 मई को जब ये एटम बम का ये तजर्बात किए गए तो 15 मई और 28 मई को फिर ये तहरीक जो थी ये बज़ाहिर दब गई थी। तो ये 15 मई के बाद 1998 फिर फादर फ्रांसिस नदीम और मैंने हमने इंग्लिश मंथली शुरू किया था जिसका नाम था क्रिश्चियन व्यू, जो सन 2008 तक जारी रहा। और फादर नदीम इस साल 3 जुलाई 2020 को खुदा में सो गए। तो ये सन 1998 ये बिशप जॉन जोसेफ की शहादत के बाद हमने ये इंग्लिश में क्रिश्चियन व्यू शुरू किया था ताकि हम उनके तमाम जो बातें हैं उनको हम ताज़ा रखें। और कोई बात फादर जिससे पहले कि हम कंक्लूड करें? आखिर में मैं ये कहूँगा कि उनकी शहादत हमारे लिए एक रहनुमाई है और मैं समझता हूँ जो वो शहादत देते हैं उनका नाम तारीख में हमेशा के लिए रहता है। और बिशप जॉन जोसेफ की से अकीदत का इजहार करते हुए मैं यही कहूँगा, मेरी दुआ है दिल से कि खुदा उन्हें जन्नतुल फरदौस में जगह अता करे और जो भी मिशन उन्होंने शुरू किया था काश के आज के नौजवान जो पाकिस्तान और दुनिया भर में मौजूद हैं उनकी जो सैक्रिफाइस है, जान उन्होंने कुर्बान किया अपनी कौम पे, काश हम भी ऐसा ही कर सकें और वलवले और जुर्रत के साथ आगे बढ़ सकें उनकी मिसाल अपनी जिंदगी में रखते हुए। एंड में दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात ये कि जब यूनानी फलसफी ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेटिस को कहा गया कि उसको जहर का प्याला पीना है, जो तमाम हम हिस्ट्री जानते हैं, और उस शाम को सोक्रेटिस अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे और जब उन्होंने खुद अपने हाथ से जहर का प्याला पिया तो हम उसको खुदकुशी नहीं कह सकते। इसी तरह इट वाज शहादत और वी स्टिल रिमेम्बर। इस तरह बिशप जॉन ने एक मकसद के तहत एक ब्लास्फेमी जो लॉ जो अब भी सन 2020 में भी उसको इस्तेमाल गलत किया जाता रहा है। एक दफा सैमी अजराया हॉल में लाहौर में प्रोग्राम हो रहा था, 2 मिनिस्टर्स वहां पर थे, मंजूर भट्टू साहब और अकरम सी गिल। 2 मिनिस्टर्स की मौजूदगी में मैंने 2 तजावीज दी कि हम जानते हैं कि बिशप जॉन जोसेफ की शहादत के बाद ये ब्लास्फेमी लॉ खत्म नहीं होगा। गो हम पहले मुकम्मल रिपील कहते रहे, इट विल नॉट फिनिश। इट्स ट्रू। 2 बातें करनी चाहिए। पहले ये कि एसएसपी लेवल का बंदा इन्वेस्टिगेशन करे, ये मैंने सजेस्ट किया, और फिर उसके बाद एफआईआर काटी जाए। दूसरा ये कि जो इल्जाम लगाता है और जिस पर इल्जाम लगाया जाता है दोनों को उस वक्त तक अंदर रखें जब तक ये फैसला ना हो जाए कि हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। तो आमतौर पर जब इल्जाम झूठा लगाते हैं वो मारे जाते हैं, और जो जिन पर इल्जाम लगाया जाता है वो मारे जाते हैं, जो लगाते हैं वो खुलेआम फिरते रहते हैं। तो दोनों को उस वक्त तक अंदर रखें जब तक फैसला ना हो जाए। तो हमारी दुआ है कि जो स्ट्रगल उन्होंने शुरू की थी कि अब भी अगर इन पे इम्प्लीमेंट हो, अगर इसका हम इस्तेमाल की गलत इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, वी नो दैट इट विल नॉट फिनिश, लेकिन द रॉन्ग यूज ऑफ ब्लास्फेमी शुड एंड बाय ऑल मीन्स। बहुत शुक्रिया फादर रशीद और फादर अनायत और बिशप जॉन जोसेफ। हम आपको once again wish you a very happy birthday in heaven, and we know you are very happy and you must be praying for us. Thank you, Father. Thank you so much. Thank you, Naeem. Thank you.